केंद्र आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। देश भर में छठ पूजा का त्योहार 28 अक्टूबर शुक्रवार से शुरू हो चुका है। भगवान सूर्य व छठी माता को समर्पित छठ पर्व का हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिन तक चलता है। इस साल यह 28 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। छठ पूजा में संतान के स्वास्थ्य, सफलता व दीर्घ आयु के लिए पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी रखते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लुधियाना बचत भवन में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों की रोकथाम के लिए एक मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सुरभि मलिक ने की। इस मौके उनके साथ सिविल सर्जन लुधियाना डॉक्टर हतिंदर कौर के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। उपायुक्त ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया सहित राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से इस बीमारी की रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कहा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਡੈਂਗੀ की ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡੈਂਗੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 30-31 ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਗਰਾਉਂ ਐਂਡ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ फ्री ऑफ कॉस्ट ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ कि डेंगू के जोड़े केसिस हैं वो हुण पिछले महीने नालों वध रहे हैं तो आने वाले 2 महीनों के विच आपां नूं पूरी एहतियात रखने की ज़रूरत है। सेहत विभाग वालों जिन्नियां भी तैयारियां हैं असीं वो सारियां डेंगू का सामना करने लई कीतियां होईयां हैं। साडियां टीमां जिहड़ियां हैं वो भी घरां दे विच जाके लार्वा चैक करदियां हैं ते जे किते भी लार्वा मिलता है तो उहनूं डिस्ट्रॉय करके ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰਿਜ ਦੀਆਂ ਟਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੋਸਕੀਟੋ ਰਿਪੈਲੈਂਟ ਕਰੀਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੇਨਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹਨ NS1 ਔਰ ਜਾਂ ਡੇਂਗੂ IgM ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੇਂਗੂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੈਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਫਰੈਸਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
लुधियाना से राजेश मेहरा की रिपोर्ट। सिखों की आस्था का केंद्र सचखंड श्री दरबार साहिब, जहां रोजाना ही बड़ी गिनती में देश विदेश से संगत नतमस्तक होने पहुंचती है और अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। वहीं कई फिल्मी सितारे और कई राजनीतिक नेता भी सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक होने पहुंचते हैं। पिछले दिन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक होने पहुंचे थे और आज भारत के केंद्रीय राज्य सुरक्षा मंत्री अजय भट्ट श्री दरबार साहिब नतमस्तक होने पहुंचे, जहां उन्होंने पवित्र गुरबाणी का कीर्तन भी श्रवण किया और फिर अकाल तख्त साहिब भी नतमस्तक हुए। दर्शन करने और प्रभु का दर्शन करने मात्र से कई संकट दूर हो जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के, और यहाँ का पवित्र जल इसका आचमन करने से आपकी रोग व्याधियाँ कई चीज़ की नष्ट हो जाती हैं। इसमें जिन्होंने स्नान किया उनके चर्म रोग अगर कोई है वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी हमारी स्पिरिचुअल शक्ति यहाँ पर है और हमारे सभी परम पूजनीय गुरुदेव जितने भी हमारे यहाँ हुए हैं उन सबका आशीर्वाद यहाँ सम्मिलित रूप से मिलता है। और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। हर मनुष्य का कल्याण हो उसमें ये कामना की गई है। और जब जब संकट आता है, दूसरा पक्ष ये भी है, तो संकट का मुकाबला कैसे करना चाहिए ये गुरुवाणी में लगातार पहले गुरुजी से लेकर और जब फिर गुरु ग्रंथ साहिब को ही परम गुरु माना गया तब तक के गुरुजन जितने भी थे उनकी वाणी से साफ साफ जाहिर होता है। कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, और जब कभी मानव मात्र पर संकट आता है तो रक्षा के लिए समर्पण भी किया गया है। धर्म पर संकट आया, देश पर संकट आया, तब भी हमारे गुरुजनों ने बहुत बड़ा बलिदान देकर भी अपने ऊपर सारी बातें लेके मानव कल्याण किया है। इसलिए इस पवित्र स्थल के दर्शन करने से ही ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। इसीलिए हम आज यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। और धार्मिक पर्यटक, कोई भी जाति धर्म वर्ग का हो, धार्मिक पर्यटक यहाँ बहुत आता है और अगाध श्रद्धा से आता है। वो जैसे ही यहाँ के गेट से अंदर आता है ऐसा स्पिरिचुअल उसके अंदर रोम रोम में रक्त प्रभावित होता है कि वो सारी सुध बुध भूल जाता है। इसलिए मैं यहाँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ। संकट की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट है या परिसर डिफेंस का, जहाँ पर बहुत सा नशा और विस्फोटक सामग्री आती रहती है, इसके लिए केंद्र सरकार क्या करती है? देखिए, जो केंद्र ने करना है वो तो कर ही रही है। चिंता का विषय ये है, मैं कल आईटीबीपी के लोगों से भी मिला हूँ, कई लोगों से मिला हूँ। यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही सारी चीज़ें होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सीमाओं पर जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर हेरोइन पकड़ी है, अन्य चीज़ें स्मैक वगैरह पकड़ी हुई है, मैंने देखा भी। मुझे एक निवेदन करना है सभी लोगों से, अपने पंजाब के लोगों से भी, अपने देश के लोगों से भी। जिस तरह से ये तस्करी बढ़ रही है, जिन्होंने हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर दिया है, जो भी इस किस्म के नशे कर रहा है उसे देखना चाहिए कहीं हमारा बच्चा सुनसान तो नहीं हो गया है, कहीं वो कभी चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा है, कहीं एकांतवासी अकेले में तो नहीं रह रहा है, ये इसके लक्षण है, वो गुमसुम तो नहीं हो रहा है। इस तरह से मैंने देखा। जो नशे की बात, कल यहाँ बैठक थी, मैंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा, सारे लोग वहाँ पर थे, जिलाधिकारी भी यहाँ के थे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, तो उनको भी मैंने कहा है कि हम खोखले हो गए हैं। जितने यहाँ होटल व्यवसायी कल मिले और जो प्रबुद्ध लोग मिले, उनकी बैठक में भी मैंने कल कहा है यहाँ जिलाधिकारी के जो यहाँ पर। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब में जब भी चुनाव होते हैं तो पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा नशा और बेरोजगारी का होता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये मुद्दे गायब होते नजर आते हैं।
वहीं आज अमृतसर के क्षेत्र दक्षिण में शहीदा साहिब गुरुद्वारे के नजदीक नशा यहाँ मिलता है के पोस्टर लगे हुए मिले, जिसके बाद अब लोग आम आदमी पार्टी पर निशाने साधते नजर आ रहे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने जो 4 महीनों में नशा खत्म करने का वादा किया था वह वादा कहाँ गया। इस मौके चश्मदीद का क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮੋਨੀ ਚੌਂਕ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ 1:05 ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਾਊਂਡ ਪੌਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 2 ਤੇ ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਟਰ ਤੇ ਪਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਤਖਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਰਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਬੀਜ ਹੁਣ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ? ਭਾਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब के बंटवारे के समय अक्सर किसान सरहद पर कटीले तारों को लेकर काफी परेशान रहते थे, जिसके बाद किसानों ने कई बार सरकार को अपनी जमीन वापस करने या पर्याप्त मुआवजा देने के लिए पत्र लिखा है। पंजाब के मुद्दों को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने देश के प्रधानमंत्री से कटीले तार से 200 मीटर आगे तार लगाने की अपील की है ताकि पंजाब के किसान खुश रह सके। वहीं इस पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। अगर कांग्रेस की बात करें तो अमृतसर से सांसद सरदार गुरजीत सिंह औजला ने कहा है कि इस बात को केंद्र के सामने उन्होंने लंबे समय तक रखा। और दूसरी ओर डॉक्टर राजकुमार वेरका जो कभी कांग्रेस का हिस्सा थे और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाया है। वेरका ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नशीले पदार्थों की तस्करी और हथियारों की तस्करी को और बढ़ावा देना चाहते हैं। देखो जिੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਇਹ BSF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ BSF ਦੇ ਗੇਟ ਨੇ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਆ। 83 ਨੰਬਰ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਤੱਕ BSF ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਹੈ। ਬੁਰਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਹਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਕੜਾ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜਦੋਂ 90 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਰੀਬ 2000 ਏਕੜ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਖੜੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਤਕੀ ਸੂਰ ਖਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ 17 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਕੈਨਰ ਸਰ ਫਿਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਕੈਨਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ,
12 ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈਸੀਪੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ 2 ਸਕੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ 2 ਟਰੱਕ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸਕੈਨਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਇਹ ਸਕੈਨਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ट्रक स्कैनर ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖ के भेजा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने कि स्क्रैप ਇਹਨੂੰ चुक के ले जाओ। आज भगवंत मान जी कहते हैं कि जो बॉर्डर पे कंटीली तार लगी है उसको पीछे कर दिया जाए और वो खाली कर दी जाए जमीन, ताकि भगवंत मान जी वहां असला जल्दी से फेंका जा सके, वहां पे ड्रग जल्दी से इधर आ सके। बड़ी मुश्किल से वहां कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और आप बचकानी बातें करते हो। आपको ये चाहिए किसानों की बात करनी है तो ये कहना चाहिए कि किसानों की जमीन केंद्र सरकार एक्वायर करे और उन्हें मुआवजा दे। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। तपाचार्य तप चक्रेश्वरी श्री मोहन माला जी महाराज साहिब की सुशिष्या शासन प्रभावक आयंबल तपराधिका महासती डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज, प्रवचन सम्राज्ञी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहिब आदि ठाणे 9 चातुर्मास हेतु एसएस जैन बिरादरी आत्म गद्दी रूपा मिस्त्री गली लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहिब ने अपने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहिब के मुखारबिंद से। एक बार इस दिवस का आगमन होता है और इस दिन ज्ञान की आराधना से ज्ञान अंतराय समाप्त होते हैं, क्षय होते हैं। ज्ञान की आराधना विभिन्न प्रकार से होती है। पंच प्रमेष्टि की आराधना से अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी की अनुनय विनय से, ज्ञानी जनों की सेवा शुश्रूषा से, श्रुत की आराधना करने से, श्रुत की सेवा करने से, श्रुत की सेवा विद्या का दान देने से, किसी की पढ़ाई में सहयोग करने से ज्ञान की आराधना होती है। कुछ विशेष अनुष्ठान जप साधना से, तप साधना से, सबसे ज्यादा विनय भाव के साथ जो ये आराधना की जाए, ये ज्ञान की आराधना इससे संपन्न होती है। हमारी इससे बुद्धि निर्मल होती है, सम्यक होती है। जब ज्ञान की हम आराधना करते हैं तो हमारा जो सोचने का तरीका है वो सही दिशा में शुरू हो जाता है। हमारी डिसीजन पावर परफेक्ट हो जाती है। कोई भी निर्णय लेने की क्षमता, शक्ति बढ़ जाती है। किसी को सलाह देने की एक अच्छी बुद्धि हमारे भीतर में जागृत होती है। इस ज्ञान पंचमी की आराधना से कठिन से कठिन कोई इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है इस ज्ञान की आराधना करने से। तो आज के दिन कोई उपवास, कोई आयंबिल एकादशी से भी इस ज्ञान पंचमी की आराधना करते हैं और उसमें विशेष रूप से ज्ञानी जनों की नमो थुड़ंग की आराधना करते हैं और नमो नानस की आराधना करते हैं, सरस्वती माता की आराधना करते हैं जो विद्या देने वाली है। तो आज के लिए हम भी इस आराधना को प्रारंभ करेंगे। ज्ञान पंचमी की जो ये आराधना आप सभी के पास पेपर है, उस पेपर में सबसे पहले भक्तामर स्तोत्र की 6 नंबर की गाथा है, जिसमें अपने आप को एकदम छोटा, अल्प मानते हुए
आचार्य मानतुंग ने प्रभु भक्ति का गान किया है, जिसकी आराधना से ज्ञान की अंतराई टूटती है। आप इस अनुष्ठान को प्रतिज्ञाबद्ध अपने स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आप को कभी आगम श्रवण। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर हिमाचल केसरी परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब ठाणे 5 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा फरीदकोट में विराजमान हैं। आज महाराज साहेब ने अपने प्रवचनों से श्रावकों को निहाल करते हुए क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारबिंद से। लेकिन भोगने आसान होते, असाता वाले कर्म करने आसान होते, लेकिन भोगना क्या होता उनका मुश्किल होता है। कहे 10 प्रकार से साता वेदनीय बनता है और 12 प्रकार से असाता वेदनीय बनता है। अब साता वेदनीय बांधना भी आत्मा के हाथ में और असाता वेदनीय बांधना भी आत्मा के हाथ में। जिनकी आत्मा जागती है वो असाता वेदनीय बांधने से हर समय बचते, और जिनकी आत्मा मोह निद्रा में सोई है वो हर समय क्या कर रहे हैं, असाता ही इकट्ठी कर रहे हैं। जब असाता खूब सारी ढेर सारी इकट्ठी हो जाती है ना, फिर सोचते हैं परमात्मा मेरे से बड़ा जुल्म कर रहा है। सारे दुनिया के दुख किसको दे दिए, मेरे को दे दिए। सुख तो औरों को बांट दिए और दुख किसको दे दिए, मेरे को तो सुख का सांस भी नहीं आता। कहते भाई परमात्मा के सिर के ऊपर अपना दोष ना दूसरे के ऊपर देना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपना गुण दूसरे के ऊपर नहीं देंगे। कहा ये तो व्यक्ति की नासमझी है। कहा जो भी आपके जीवन में दुख सुख आता है आखिर उसके जिम्मेवार आप स्वयं ही हैं, उसके जिम्मेवार आप स्वयं ही हैं। किसी ने किसी को कहा भाई ये काम कर दे, तो सीधा कहते मैं तेरा नौकर हूं। कहते उसने ना ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब उसने उसका काम नहीं किया हुआ, उसने उसका काम नहीं किया हुआ, उसने उसका भला नहीं किया हुआ, उसने उसकी सेवा नहीं की हुई, वो उसका सहायक नहीं बना। यदि सहायक बना होता तो वो उसको ना करता। कहा इसका मतलब हम कहना मनवाना चाहते हैं तो हम मानना भी सीखें। यदि हम किसी का कहना नहीं मानते तो याद रखना उस आत्मा का भी कोई कहना नहीं मानेगा। अब दुनिया के अंदर आप सेवा दोगे सेवा मिलेगी, आप दुख दोगे तो उसके बदले क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। कहते हैं जो कुएं की आवाज़ जैसी आवाज़ दोगे वैसा ही होगा। ऐसे ही सुख और दुख इस आत्मा ने दुनिया को जो दिया वो ही इसको क्या होता है, बदले में वो ही आता है। जिसने सुख दिया है वहाँ सुख आएगा, जिसने दुख दिया है उसके दुख आएगा। कहते हैं प्राय करके, जैसे एक दिन बताया था ना, जे आकाश में घूमने वाले ग्रह कौन से वाला, वो तो कहते हैं कोई सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, कोई पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते हैं, ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं उसके। और देखा जाए जो अपना आस पास के रहने वाले लोग होते हैं ना, वही सारे किसका रूप होते हैं, ग्रह का ही रूप होते हैं। जिनकी हमने सेवा की होती है वो सेवा देने के लिए आ जाते हैं, और जिनको हमने दुख दिया होता है वो दुख देने के लिए आ जाते हैं। कहते हैं अब जो दिया है वो मिलेगा, इसलिए क्या करो, शांति से सहते रहो और आगे के लिए अच्छे बीज बोते रहो, अच्छा काम करो। अब अच्छे बीज बोने हैं, बीजों को काटना है, खत्म करना है, जो आत्मा के अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। फरीदकोट से जसविंदर की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।